بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاہلا وسہلا ومرحبا بکم مرۃ اخری فی هذا اللقاء المبارک۔ آپ تمام حضرات کا اس پروگرام میں استقبال ہے۔ ہم عربی زبان سیکھنے کے لیے کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ دروس اللغة العربية لغیر الناطقین بها الجزء الاول۔ کس کی ہے یہ؟ پھر سے بولیں۔ دکتور کی دکتور؟ دکتور الدکتور فا عبد الرحیم۔ یہ فا کیا ہے؟ ہم نے بولا تھا فانی امبادی ایک جگہ کا نام ہے جو ساؤتھ انڈیا میں ہے نا۔ تو اس کتاب کے آپ لوگوں نے آج تک 4 لیسنز مکمل کیے ہیں۔ الدرس الاول جس میں آپ نے حاذا پڑھا تھا، الدرس الثانی جس میں آپ نے ذالکا پڑھا تھا، الدرس الثالث میں کیا پڑھا تھا؟ المعرفہ والنکرہ۔ المعرفہ جیسے القلم سے قلم، الکتاب کتاب، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی نکرہ اسم ہوگا اس کو معرفہ بنانے کے لیے ہم الف لام ایڈ کرتے ہیں، کہا تھا نا، یہی آپ نے پڑھا ہے نا۔ جیسے قلم، اگر اس کو معرفہ بنانا ہے تو القلم ایک ہی پیش رہے گا۔ اسی طرح کتاب الکتاب، اور اس کے بعد اس میں آپ نے الحروف الشمسیہ والحروف القمریہ پڑھے ہیں نا۔ تو مثال کے طور پر ہم کتابن پہ جب ہم نے الف لام لگایا تو یہ لام ہم نے پڑھا، لیکن جب آپ شمسن پہ الف لام لگاتے ہیں تو یہ بنتا ہے الشمس۔ الشمس، یہ جو یہاں پہ الف ہے اس کو ہم کس سے جوڑتے ہیں؟ شین کے ساتھ، لام کو نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ نے الحروف الہجائیہ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 2، الحروف الشمسیہ والحروف القمریہ۔ الحروف قمریہ یاد رکھنے کے لیے آپ نے کوئی فارمولا یاد رکھی؟ کون کون سے حروف قمریہ ہے؟ اس کے لیے ایک فارمولا ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ حق کا خوف عجب غم ہے۔ یہ جو حروف ہیں یہ 14 حروف ہے، حا، قاف، کاف۔ اب یہ جو الف ہے یہاں پہ یہ حمزہ کے بدلے ہے، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا، یا۔ یہ سب کیا ہے؟ الحروف القمریہ، الحروف القمریہ۔ ان کے علاوہ جو حروف ہے وہ کیا ہوئے؟ الحروف الشمسیہ۔ ایک دن بچے کو پوچھا گیا بتاؤ الحروف قمریہ کون سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حروف شمسیہ کو چھوڑ کر جو حروف ہیں وہ حروف قمریہ ہے۔ پھر پوچھا گیا اچھا چلو پھر حروف شمسیہ بتاؤ کون سے؟ تو انہوں نے کہا جو حروف قمریہ کو چھوڑ کر ہے وہ کون سے ہے؟ حروف شمسیہ۔ اب آپ ایسا نہیں بتائیں گے، دونوں میں سے ایک یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی جو بچیں گے وہ دوسرا ہے۔ تو یہ ہے الحروف القمریہ، حق کا خوف عجب غم ہے۔ تو اس فارمولا میں یا اس جملے میں جو حروف ہیں وہ حروف قمریہ ہے، ان کے علاوہ جو ہے وہ ہے حروف شمس۔ اسی طرح ایک اور فارمولا عربک میں ہے، ابغ حجک وخف اقیمہ، حجک اقیمہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اور فارمولا، یہ بھی سیم ہے اسی کی، کس کی؟ حروف قمریہ کی۔ عربی میں ہے، یہ اردو میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی آپ لوگ یاد رکھیں گے، اچھا رہے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی یہی حروف ہیں جو اوپر دیے ہوئے ہیں، حمزہ، با، غین، ہا، جیم، کاف، واو، خا، فا، عین، قاف، یا، میم، ہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ یاد رکھیں گے۔ تو اب دیکھیں گے آپ ان سے جو بھی کوئی حرف، جو بھی کوئی لفظ شروع ہوگا، جیسے یہاں پہ کیا ہے؟ ہا۔ ہا سے کیا ہوتا ہے شروع؟ کوئی لفظ بتائے۔ ہا، حمار، چلو ٹھیک ہے، حمار۔ جب اس پہ الف لام داخل کریں گے نا
तो उस लाम को पढ़ना है, हम बोलेंगे अल हिमारू, अल हिमारू। ठीक है, अब देखो इनके अलावा अगर किसी और हर्फ से कोई लफ्ज शुरू होता है उसमें लाम नहीं पढ़ना। इनके अलावा आप कोई भी हर्फ बता दें। खा तो इसमें है ना, खा इधर है ना, खा तो ये हुर्फ कमरिया में से ही है। सा, सा, अब देखिए सा से कोई लफ्ज शुरू हो जाए, समर, हाँ, सल्लाजा, चलो ठीक है, सल्लाजतुन, सल्लाजतुन किसको बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर, फ्रिज है। तो इससे अगर हम अलिफ लाम इस पे अगर हम दाखिल करेंगे ना तो हम बोलेंगे अस्सल्लाजतु। यहाँ पे ये जो हमज़ा है स्टार्टिंग में, इसको सा से जोड़ेंगे, लाम को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपने हुरूफ कमरिया और हुरूफ शम्सिया पढ़े तीसरे लेसन में। चौथे लेसन में आपने क्या पढ़ा? हुरूफुल जर्री, हुरूफुल जर्री। तो उसमें आप लोगों ने देखा कि कोई भी इसम जब नॉर्मली आता है हम उसको क्या रखते हैं? मरफू। कोई भी जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसम को इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली हम उसको मरफू रखते हैं। मिसाल हम बोलते हैं पेन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आप बोलते हैं काला मुन। ठीक है, इसी तरह बुक आप क्या बोलते हैं? किताबुन। तो आप नॉर्मली इसको क्या रखते हैं? मरफू हालत। मरफू किसको बोलते हैं? आप याद रखेंगे जो इसम होगा अगर उसके लास्ट में पेश होगा उसको हम बोलते हैं मरफू। अगर लास्ट में क्या होगी? ज़बर, तो उसको हम बोलते हैं मंसूब। अगर लास्ट में ज़ेर होगी तो उसको हम बोलते हैं मजरूर। ये अलामातुल एराब है असली, अलामातुल एराब अल असली। असली जो एराब की निशानी वो ये तीन है, फिर इसके अलावा जो है वो असलिया नहीं है। ठीक है, ये आप इंशाअल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे। फिर एराब की भी आप पढ़ेंगे, दो किस्म है, अल एराब बिल हरकत और फिर आप पढ़ोगे अल एराब बिल हुरूफ, जैसे मुसन्ना में, जमा मुज़क्कर सालिम में है, या अस्माउल खमसा का एराब वगैरह, वो आप पढ़ेंगे आगे। फ़िलहाल आप याद रखेंगे जिस इसम के लास्ट में पेश होगा उसको मरफू बोलते हैं, जिस इसम के लास्ट में ज़बर होगी उसको मंसूब बोलेंगे, और जिस इसम के लास्ट में ज़ेर होगी उसको क्या बोलेंगे? मजरूर। और इसमें कोई फ़र्क नहीं, एक ज़बर हो या दो ज़बर, एक ज़बर वाले को भी मंसूब बोलेंगे, दो ज़बर वाले को भी। एक पेश वाले को क्या बोलेंगे? मरफू, और दो पेश वाले को मरफू। एक ज़ेर वाले को क्या बोलेंगे? मजरूर। दो ज़ेर वाले को, ये ज़ेर कहाँ पे होनी चाहिए? पहले की मिडल में कि लास्ट में? लास्ट में। किस में? यहाँ देखिए आप कालामुन, यहाँ पे ज़बर, यहाँ पे ज़बर, लेकिन इनका कोई एतबार किसका है? इन्नमल अमालु बिल खवातीन। अमलु का दरमदर किस पे है? एंड किस पे होगा? एंड किस पे होगा? अगर कोई बंदा जिंदगी में बहुत बुरा था, सिर्फ गुनाह के काम करता, लास्ट में उसने नेकी का काम किया, एंड किस पे हुआ? नेकी पे, तो उसके लिए इंतज़ार है जन्नत, है ना। कोई बंदा उम्र भर अच्छा था लेकिन लास्ट में वो गुनाह के काम पे इंतकाल कर गया, तो उसका अंजाम बुरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ज़बर ज़बर, लेकिन अंजाम लास्ट में क्या है? पेश पे। आप कहेंगे इसमें दो ज़बरें हैं एक पेश है, नहीं, लास्ट देखो लास्ट किस पे है। ठीक है, तो लास्ट किस पे है? पेश, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मरफू। इसी का अगर हम बनाएंगे काला मन मंसूब, काला मिन मजरूर। ठीक है, तो ये आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। तो काला मुन जो है हम नॉर्मली बोलते हैं, जब भी हमने बोलना होगा कोई इसम तो हम बोलते हैं काला मुन, है ना। या कहीं पर भी आप इबारत देखोगे ना तो नॉर्मली हम उसको क्या पढ़ते हैं? मरफू हालत में, मरफू हालत में। ये फिर आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि जब भी हम कोई मिसाल ये लिखते हैं ना कहीं पे कलम, असल में ये कलम ही नहीं होता, यहाँ पे होता है, ये पूरा जुमला होता है, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है। मिसाल हम कहते हैं असल में हाजा कलमुन, हाजा कलमुन, हाजा, तो इसमें हाजा मुब्तदा होता है, कलम होती है खबर, लेकिन हम कभी कभार हाजा इस्तेमाल
नहीं करते हैं, हम सिर्फ कलमुन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ख़बर जो होती है इसका मुब्तदा महजूफ होता है, तो हम उस वक़्त ये बोलते नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है। जब आप अरबी थोड़ा और आगे जाएंगे ना इसमें अरबी में, तो आप देखेंगे कि हम जुमले जो बोलते हैं वो होते क्या, जिस तरह अंग्रेज़ बोलते हैं ना, वो ये नहीं बोलते वेयर इज़ द होटल, वेयर इज़ द होटल, वो ये नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं, होटल। ठीक है, मुख्तसर। इसी तरह अरबिक वाले भी आज बोलते हैं फुंदुक, आप वो ये नहीं बोलते आइनल फुंदुक। ठीक है, ये लंबा, समझ में आ रहा ना। तो फिर जब लैंग्वेज इंसान इसमें महारत हासिल कर लेता है, फिर मुख्तसर कलाम कर लेता है, और जो अंडरस्टूड चीज़ें होती हैं वो अंडरस्टूड। लेकिन अभी तो आपके लेवल उतने नहीं है, इसलिए आप पूरा जुमला बोला करेंगे। वाज़ेह। तो इसी तरह किताबों के जो टाइटल होते हैं, किताबों के टाइटल, मिसाल ये है दुरूसुल लुग़तिल अरबिय्या लिग़ैरि नातिक़ीन बिहा, ये पूरा जुमला नहीं है, ये टाइटल है। इसी तरह आप देखेंगे किसी और किताब का टाइटल है ना, या इसी तरह जो है जो लेसन होता है ना, कोई लेसन, उसका जो टाइटल होता है वो आमतौर पर जुमला नहीं होता है। जुमला अगर टाइटल इस्तेमाल किया जाए ना, वो अच्छा नहीं माना जाता है। अगर ना पूरा जुमला, ठीक है, वो अच्छा नहीं माना जाता है। जुमला पूरा नहीं होना चाहिए। कोई टाइटल जो है ना, किताब का टाइटल हो, लेसन का टाइटल हो, तो उसमें भी क्या होता है, जैसे आप देखेंगे मिसाल किताबुन नहव, ये किसी के मिसाल के तौर पर किसी का होगा, तो ये पूरा जुमला नहीं। ये किताबुन नहवी जो है ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, लेकिन जुमला नहीं है। तो उसमें क्या होता है, असल में होता है उसमें मुब्तदा महजूफ, असल में है हाज़ा किताबुन नहवी, हाज़ा किताबुन नहवी। ठीक है, ये इंशाअल्लाह ताला आप, या तो कभी कभार ऐसा होता है कि मुब्तदा हो इसमें लेकिन खबर महजूफ होती है, कभी कभार मुब्तदा महजूफ होता है, खबर मेंशन होती है। ठीक है, ये इंशाअल्लाह ताला आप आगे पढ़ेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि आम हालत में जब हम कोई इसम इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं इस्तेमाल फ़ी हालतिर रफ़ी, फ़ी हालतिर रफ़ी यानी मरफू हालत में। ठीक है, लेकिन कभी कभार आप देखेंगे यही जो मरफू इसम था, कलमुन था, किताबुन था, इसी तरह बैतुन, मस्जिदुन, है ना, ये जो अस्मा है, फिर अगर हम अलिफ लाम इस्तेमाल करेंगे तो अल बैतु, अल मस्जिदु। ठीक है, लेकिन कभी कभार आपने देखा होगा अल मस्जिदी भी लिखा है, अल मस्जिदी भी लिखा है, अल बैती भी लिखा है। तो जब आप ऐसी हालत देखोगे तो आप थोड़ा एक कदम पीछे चले जाना, एक कदम पीछे चले जाना। यहाँ देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ देखना यहाँ पे क्या है। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, दो चीज़ें, या तो हुरूफुल जर में से कोई हरफ हो, मिसाल फी, तो ये क्या बनेगा, फिल बैती या फिल मस्जिदी। इसी तरह फिल बैती, या तो यहाँ पे क्या होगा, हुरूफुल जर। हुरूफुल जर कौन कौन से हैं, फी आप लोगों ने पढ़ा है, आला आप लोगों ने पढ़ा है, इला आप लोगों ने पढ़ा है, मिन आप लोगों ने पढ़ा है, और बी यानी जो या तो कसम के लिए भी आता है, या जैसे हम कहते हैं बिस्मिल्लाह, है ना, शुरू अल्लाह के नाम से, बिस्मि मी यहाँ पे जो आई, या कसम के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहते हैं बिल्लाही, बिल्लाही। हम जब कश्मीरी में भी बात कर रहे होते हैं आपस में, उर्दू में भी, तो हम कहते हैं कि बिल्लाह, कहते हैं ना बिल्लाही असल में। या इसी तरह वल्लाही, वाव कस्मिया जो है, ये भी किसके लिए, ये भी क्या करता है, उसके बाद आने वाले इसम को क्या देता है, जा। जैसे वल अस्री, वल फज्री, है ना, तो ये वाव कस्मिया के बाद जो इसम आता है वो भी मजरूर होता है। तो ये एक सबब हो सकता है कि इसम को क्या लगे, जा। और जो दूसरा सबब है वो आप आज पढ़ेंगे, मुदाफुन व मुदाफुन इलैहि, जो तरकीब है क्या है, मुदाफुन व मुदाफुन इलैहि, ये एक तरकीब है जिसको हम तरकीब इज़ाफ़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरकीबुन इज़ाफ़ियुन, तरकीब इज़ाफ़ी। पॉजेसिव फ्रेज क्या बोलते हैं, पॉजेसिव फ्रेज।
जैसे हम कहते हैं बशीर इज पेन, है ना, या इसी तरह मोहम्मद इज कार, तो ये क्या है, पॉजिटिव फ्रेज। इसमें जो मुजाफ मुजाफ इलैहि में जो मुजाफ इलैहि होता है ना, ये भी मजरूर होता है, ये भी क्या होता है, मजरूर। जैसे हम कहेंगे किताबु हामिदिन, इसम सिर्फ दो अवकात पे मजरूर होता है। एक ये इससे पहले हुरूफ जर आ जाए उनमें से कोई, या ये क्या हो, मुजाफ इलैहि, मुजाफ इलैहि। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चले आज हम यही पढ़ेंगे, मुजाफ इलैहि। हम पूरी तरकीब पढ़ेंगे, मुजाफ और मुजाफ इलैहि। इस तरकीब का नाम क्या है पूरा, तरकीब इज़ाफ़ी। इससे पहले आपने कौन सी तरकीब पढ़ी है? तरकीब का मतलब क्या होता है, जुड़े हुए हों, दो इसम जुड़े हुए हों, हरफ और इसम जुड़ा हुआ हो, ठीक है, यानी जुड़े हुए होंगे तो उसको बोलते हैं तरकीब। तो क्या क्या तरकीब आप लोगों ने आज तक पढ़ी? मुब्तदा खबर कहाँ तरकीब, कौन सी तरकीब पढ़ी है? एक तो आपने पढ़ा है हुरूफुल जर, जिसको हम क्या बोलेंगे, तरकीब जारी, तरकीब जारी, जिसमें हर्फ जर इस्तेमाल किया गया। आपने इससे पहले इस्मुल इशारा पढ़ा है, लेकिन आपने उस एतबार से उसको नहीं पढ़ा है। आपने उस वक्त ये नहीं पढ़ा है कि इस्मुल इशारा मुशारुन इलैहि, वो आपने नहीं पढ़ा है। मिसाल आपने पढ़ा था हाजा किताबुन, हाजा किताबुन, लेकिन ये इस्मुल इशारा मुशारुन इलैहि इसमें वाज़िह नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये इस्मुल इशारा है और किताब मुशारुन इलैहि है, लेकिन ये सही नहीं है। हाजा लैसा बिसहीहन, ये गलत है, ये मुशारुन इलैहि नहीं है, ये मुशारुन इलैहि नहीं है। इसमें क्या है असल में, ये है हाजा शैउ, हाजा शैउ किताबुन, ये असल में ये जुमला है। हम कह रहे हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, महजूफ। जैसे हम कहते हैं हाजा कलमुन, असल में क्या है, हाजा शैउ कलमुन, हाजा शैउ कलम। तो इसमें है फिर ये हाजा इस्मुल इशारा, ये है अशैउ मुशारुन इलैहि, ठीक है, दोनों मिलके बन जाते हैं मुब्तदा, और किताबुन जो है ये है खबर। समझ में आई बात? किताबुन इसमें मुशारुन इलैहि नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आप हाजा किताबुन, हाजा जो है ये इस्मुल इशारा है, और अशैउ मुशारुन इलैहि है जो कि महजूफ है, दोनों मिलके मुब्तदा बन जाते हैं, और किताबुन क्या है, खबर। ठीक है, तो यहाँ पे हाजा किताबुन में किताबुन मुशारुन इलैहि नहीं है। वाज़िह, वाज़िह, ये अहम नुक्ता है। इसमें आम लोग जो है ना गड़बड़ कर लेते हैं, ताकि जो मुशारुन इलैहि का मतलब है जिसकी तरफ हम इशारा करते हैं, जिसकी तरफ हम इशारा करते हैं। अब इसमें टेक्निकली जो मामला आ जाता है ना, जो लोग कहते हैं कि हाजा इस्मुल इशारा किताबुन मुशारुन इलैहि है, तो टेक्निकली उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि हाजा खुद जो है ये अस्मा इशारा, ये सब के सब मारिफा है, जो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाजा क्या है, मारिफा। क्योंकि जो मारिफा है ना उसकी कितनी किस्में हैं, मारिफा किस तरह बनता है, आपने पढ़ा है ना ये लेसन, मेरे ख्याल से उन्होंने कहा होगा। ये एक तो है अलिफ लाम के ज़रिए हम बनाते हैं मारिफा, है ना, या कोई नाम हो, मिसाल अलम जिसको हम बोलते हैं, अलम मोहम्मद, हामिद, मरियम, है ना, ज़माइर तीसरी किस्म ज़माइर, और चौथी किस्म अस्माउल इशारा, अस्माउल इशारा, और पांचवी किस्म अल अस्मा अल मौसूला, अल्लज़ी अल्लती। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अल्लज़ी अल्लती, चलो फिलहाल जहन में रखो थोड़ा थोड़ा। और जो पांचवी है वो क्या है कि छठी है, वो ये है कि अल मुज़ाफ इलल मारिफा, मुज़ाफ इलल, कोई इसम मुज़ाफ हो, लेकिन मुज़ाफ हो किसकी तरफ, इसम मारिफा की तरफ। इसमें भी थोड़ा आपने याद रखना है। एक है मिसाल के तौर पर रक़मुल गुरफ़ती, अल गुरफ़ा इसमें क्या है, नाकिरा की मारिफा, मारिफा, तो ये वाला रकम है ना, ये भी बन जाएगा मारिफा। दूसरा है रक़मु गुरफ़तिन, यहाँ पे गुरफ़ा क्या है,
नकीरा, तो यहाँ पे रकब मारिफा नहीं बनेगा, ये आपने याद रखना है। तो ये जो है ना हाजा किताबुन में मैंने कहा कि हाजा इसमें इशारा ज़रूर है, लेकिन जो मुशारुन इलैहि है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो मेंशन असल में ये है हाजा शैउ किताबुन, ठीक है। तो अशैउ मुशारुन इलैहि है जो महजूफ है, जो महजूफ है। तो हाजा जो है ये बदल में फिर क्या फर्क है? तो बदल ही लगता है, वही है ना, ये वही है जो इस्मुल इशारा और मुशारुन इलैहि जो ये तरकीब है ना, ये बदल में आ जाती है। ये क्या आती है? बदल में। और जो बदल है, बदल के लिए क्या शर्त है? वो एक जैसे होने चाहिए। अगर वो मारिफा ये भी मारिफा होना चाहिए, अगर वो नकीरा ये भी नकीरा। ये जिस तरह मौसूफ सिफत होता है ना, उसी तरह मान लो ये भी आता है। सर ये चेंज हो जाएगा ना फिर, ये मतलब हरफ के हिसाब से ये मुशारुन का है, यहाँ हमने शायद दूसरे में कुछ और हो, मुमकिन है और ऐसा हो सकता है। अब ये जब हम कहते हैं ना शाई, तो शाई में सब कुछ आता है, शाई में सब कुछ, इसमें मुज़क्कर भी आएगा, मुअन्नस भी आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर यही है। हाँ, ये इसमें मतलब ये जनरली यही है। अब फिर आप देखेंगे ना, जब ये महजूफ हम कहते हैं ना, तो महजूफ का मतलब है अंडरस्टूड। जब हम अंडरस्टूड कहेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि यहाँ महजूफ क्या है। मिसाल हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु मुब्तदा है, फिर लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए जो तमाम आलमीन का रब है। खबर कहाँ गई? हकीकी जो खबर है वो महजूफ है। असल में है अल्हम्दु मुख्तस्सुन लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लेकिन वो मुख्तस्सुन जो है वो महजूफ। जिस तरह हम कहते हैं ना तमाम तारीफ शुबन रब्बस, जिस तमाम आलमीन रब, लेकिन वो कहाँ पे लिखा है? कहीं पे लिखा नहीं है। अब आज के दौर में जो खबर की किस्में हैं वो भी चेंज की गई है थोड़ा बहुत। उसमें हमने कहा है कि खबर जो है वो 3 किस्मों के आते हैं, मुफरद, शिबहुल जुमला और जुमला, ठीक है। फिर शुबह जुमला में जार मजरूर या ज़र्फ़ आ सकती है, और जुमला में जुमला इसमें जुमला खबर है। ये इंशाअल्लाह ताला आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस जहन में थोड़ा रखिए कि इसमें वुसअत है, इसमें वुसअत है। अला कुल्ली हाल हम अब फोकस करेंगे किस पे? जो हमारा आज का लेसन है वो क्या है? मुदाफुन व मुदाफुन इलैहि, मुदाफुन व मुदाफुन इलैहि। एक यहाँ पे हम लिखेंगे, आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये है किताबु हामिदिन। किताबु क्या मतलब है इसका? उर्दू वाले इस तरह करते हैं इसका ट्रांसलेशन, हामिद की किताब। उर्दू वाले कहते हैं कि जिस तरकीब में का, की, के या रा, री, रे आ जाए वो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि है। वो क्या है? मुज़ाफ मुज़ाफ। जैसे यहाँ पे है किताबु हामिदिन, इसका हमने ट्रांसलेशन किया हामिद की किताब। उर्दू में, अरबी में ये नहीं है का, की, के मत है कहीं पे, यहाँ पे 2 ही लफ्ज़ है, किताबु हामिदिन। अब उर्दू में लिख लेते हैं हम हामिद किताब, तो इसका कोई माना नहीं है। अब अरबी में बहुत सारे हुरूफ जो है ना वो हम हज़फ कर लेते हैं, उनके बदले यहाँ पे ज़बर ज़ेर में थोड़ी चेंज कर लेते हैं, वो माना खुद से इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो किताब हामिदिन का तर्जमा क्या होगा? हामिद की किताब। इसी तरह हम लिखेंगे बैतु मुहम्मदिन, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मुहम्मद घर। अब ये घर क्या है? मुज़क्कर है, तो उर्दू में ना तो ये हम क्या बोलेंगे? मोहम्मद का घर। ये का, की, के आप उर्दू के ग्रामर के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह तालिबुल मदरसती क्या बनेगा? स्कूल का तालिब इल्म या स्कूल का शागिर्द, ठीक है। यहां तक ओके है ना? इसी तरह साअतुल वलदी क्या बनेगा? लड़के की घड़ी, ठीक है। तो ये जो जुमले आप देख रहे हैं अरबी में किस एतबार से आते हैं और उर्दू में किस एतबार से आते हैं, ये आप जहन में रखेंगे। अब आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। किताबु हामिदिन, इसमें जो पहला इसम होगा ना ये वाला, ये क्या कहलाता है?
मुदाफुन, क्या बोलते हैं? मुजाफ। इसी तरह बैतु मुहम्मदिन, इसमें बैतु क्या है? मुजाफ। तालिबुल मदरसती, इसमें तालिब क्या है? मुजाफ। साअतुल वलदी, इसमें साअतु क्या है? मुजाफ। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मुदाफुन, मुजाफ। ठीक है, इसमें जो दूसरा इस्म है हामिदिन, इसको हम बोलते हैं मुजाफुन इलैहि। मुहम्मदिन, ये क्या है? मुजाफुन इलैहि। यहाँ पे तालिबुल मदरसती में अल मदरसा क्या है? मुजाफुन इलैहि। साअतुल वलदी में अल वलदी क्या है? मुजाफ इलैहि। ठीक है, एक बार फिर। किताबु हामिदिन, इसमें किताब क्या है? मुजाफ। हामिदिन, बैतु मुहम्मदिन, बैतु क्या है? मुजाफ। मुहम्मदिन। तालिबुल मदरसती, तालिब क्या है? मुजाफ। अल मदरसती। साअतुल वलदी, साअ मुजाफ। अल वलदी मुजाफ इलैहि। तय्यब, किताबु हामिदिन, ऐन अल मुजाफ? ऐन मुजाफ इलैहि? बैतु मुहम्मदिन, ऐन मुजाफ? ऐन मुजाफ इलैहि? तालिबुल मदरसती, ऐन मुजाफ इलैहि? ऐन मुजाफ? तालिब। साअतुल वलदी, ऐन मुजाफ? ऐन अल मुजाफ इलैहि? वलद। तय्यब, यहाँ तक क्लियर? मुजाफ किसको कहते हैं? जिसको किसी और इस्म की तरफ निस्बत की जाए उसको बोलते हैं मुजाफ। जैसे ये कलम है, इसकी निस्बत हम करेंगे किसी और, मिसाल हामिद की तरफ, तो हम कहेंगे कलमु हामिदिन, तो कलम मुजाफ, हामिद किताब। किताबुल मुदर्रिसी, किताब मुजाफ, अल मुदर्रिसी मुदाफुन इलैहि। ठीक है, तो आम तौर पर जो मुजाफ होता है, जो मुजाफ होता है, ये इसके बाद वाले इस्म की मिल्कियत होती है। क्या होती है? सब कलम हामिदिन, तो हम क्या कहते हैं? हामिद का कलम। आम तौर पर ये क्या होती है? मिल्कियत। लेकिन जरूरी नहीं है। तो ये मुजाफ इलैहि नहीं है, तो ये गलत है। तमवीज गो मुजाफ है, क्या गलत? ये गलत, ये सेंटेंस बराबर की है, ये भी तरकीब है, अभी ये सेंटेंस पूरा नहीं है। फिर हम कहेंगे मिसाल किताब हामिदिन, हामिद की किताब, फिर कहेंगे जदीदुन, नहीं है। हाँ, किताब हामिदिन कदीमुन। ठीक है, फिर ये सेंटेंस बनेगा। ये पूरा सेंटेंस हम अभी नहीं बता रहे हैं, हम बस एक तरकीब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मुजाफ किसको कहते हैं, मुजाफ इलैहि किसको कहते हैं, ये क्लियर है? अब आप पहचान पाएंगे ना मुजाफ कौन सा है, मुजाफ इलैहि कौन सा है। अब इसके बाद एक और नुक्ता है, उसके बाद हम किताब पढ़ेंगे। ये देखो, हमने बोला कलमु हामिदिन, इसमें मुजाफ कौन सा है? कलम, मुजाफ इलैहि हामिदिन। ठीक है, कलमु क्या है? मुजाफ, हामिदिन मुजाफ इलैहि। ये जो मुजाफ इलैहि है, इस पे अलिफ लाम है, इस पे अलिफ लाम। जब मुजाफ इलैहि पे अलिफ लाम नहीं होगा तो हम कितनी ज़ेर डालते हैं इसके नीचे? 2 ज़ेर। लेकिन जब मुजाफ इलैहि पे अलिफ लाम हो, हम एक ही ज़ेर डालेंगे, क्योंकि अलिफ लाम जब होता है तब 2 ज़ेर 2 ज़बर 2 पेश नहीं आते, बल्कि एक ही ज़बर एक ही ज़ेर एक ही पेश आता है। ये नुक्ता क्लियर है ना, ये आप पहले भी जानते हैं। अगर हम कहेंगे मिसाल मोहम्मद का घर, तो हम क्या बोलेंगे? बैतु मुहम्मदिन, मुहम्मदिन। लेकिन अगर हम कहेंगे एक जो लड़के का घर, बैतु अल वलदी, अल वलदी, ये भी क्लियर है। अब एक और नुक्ता आप याद रखेंगे कि ये जो कलमु है, आम हालत में हम इस पे पेश रखेंगे, लेकिन एक ही पेश। कितने पेश? एक ही पेश।
आम हालत में जनरली जब ये आएगा हम इस पे क्या रखेंगे, एक पेश, ठीक है। आम हालत में जब ये आएगा हम इस पे क्या रखेंगे, पेश, लेकिन एक ही, इस पे दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश नहीं आएगा। और जो हामिद हैं इसके लास्ट में हम आम हालतों में क्या रखेंगे, दो ज़ेर, अगर अलिफ लाम होगा तो एक ज़ेर। सिंपली आप याद रखेंगे कि जो मुज़ाफ इलैहि है, जो मुज़ाफ इलैहि है ये हमेशा मजरूर होता है। मजरूर का मतलब फ़िलहाल आप याद रखेंगे इसके लास्ट में क्या होती है, ज़ेर। फिर आप आगे पढ़ेंगे एक चीज़ ममनू मिन सर्फ, उसके ज़ेर के बदले ज़बर आ जाती है, उसके बदले ज़ेर के बदले क्या आती है, ज़बर, लेकिन वो आप आगे पढ़ेंगे अभी नहीं, ठीक है। मिसाल लड़कियों के नाम, अगर हमने कहना है ना ज़ैनब का कलम, तब हम कलम ज़ैनब कहते हैं, क्योंकि लड़कियों के नाम पे ज़ेर नहीं आती। ये आप याद रख लेना, बस इतना याद रख लेना, बाकी हम देखेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो पहले पे क्या रखते हैं हम नॉर्मली, पेश, दूसरे पे क्या रखते हैं, ज़ेर। ये जो पहला वाला है ना, इस पे मैंने ये नहीं कहा कि ये मरफू होता है, ये कोई मैंने कहा जनरली हम इस पे क्या रखते हैं, पेश, क्योंकि ये चेंज भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, चेंज। जिस साल हम कहेंगे मकतबुल मुदीरी, क्या मतलब है मकतबुल मुदीरी का, प्रिंसिपल्स ऑफिस। इसमें मुजाफ कौन सा है, मकतब, ये हो गया मुजाफ, और मुजाफ इलैहि मुदीरी, ठीक है। अब मुदीरी ये तो इस पे हमेशा मजरूर रहेगा, लेकिन जो मकतबु है अगर इससे पहले हरफी जर आ जाए, ज़ल्फी, तो ये फी मकतबिल मुदीरी बनेगा, फिर ये यहाँ पे पेश नहीं रहेगा। क्या कहा हमने, जनरली जो मुजाफ होता है उस पे पेश होता है, लेकिन अगर इससे पहले हरफी जर आ जाए तो ये मजरूर बनेगा। लेकिन जो मुजाफ इलैहि है ना, ये हमेशा क्या होता है, मजरूर। मुजाफ इलैहि यकूनु मजरूर मजरूरन दाइमन 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 दाइमन, ठीक है। वल मुजाफ लैसा लहू एराबुन खास, इसका कोई खास एराब नहीं है। यतगय्यरु हस्बल अवामिल, अवामिल के एतबार से ये क्या होता है, चेंज। क्लियर। तो मुजाफ मुजाफ इलैहि या जिसको हम तरकीब इजाफी बोलते हैं, इसमें आमतौर पर दो इस्म होते हैं। पहला इस्म जो होता है इसकी निस्बत हम दूसरे इस्म की तरफ करते हैं, पहले इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ करते हैं, ठीक है। क्लियर क्लियर। अब फिर आप आगे इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगी। जो मुजाफ मुजाफ इलैहि वाली तरकीब होती है ना, मुजाफ मुजाफ इलैहि वाली तरकीब जो होती है ये हकीकत में इस तरह नहीं होती है। इसमें ली छुपा होता है या मिन छुपा होता है। क्या होता है, ली या मिन। मिसाल यह है ना कलमु हामिदिन, असल में यह है अल कलमु लि हामिदिन, अल कलमु लिल हामिदिन। इसी तरह मकतबुल मुदीर, असल में यह है अल मकतबु लिल मुदीर। अब ये जो है ना इसको छोटा करके बनाया गया मुजाफ मुजाफ इलैहि। क्या बनाया गया, मुजाफ। इसी तरह हम कहेंगे खातमु ज़हाबिन, क्या है ये, खातम किसको बोलते हैं, अंगूठी को, ज़हब सोना, कौन सा सोना, यही स्लीप नहीं, गोल्ड, गोल्ड को क्या बोलते हैं, ज़हब। तो खातमु ज़हाबिन सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी। हकीकत में ये क्या है, असल में ये है खातमुन मिन ज़हाबिन, ऐसी अंगूठी जो ज़हब से बनाई गई है, सोने से बनाई गई, ठीक है। तो ये जो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि वाली तरकीब होती है इसमें ली छुपा होता है, मिन छुपा होता है, ठीक है, वाज़ेह। अब इसको छोटा करके मुख्तसर करके ये वाली तरकीब बनाई गई। फ़िलहाल आपको बस ये याद रखना है मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि जो तरकीब है इसमें दो इस्म होते हैं। पहला इस्म मुज़ाफ कहलाता है, दूसरा इस्म मुज़ाफ इलैहि कहलाता है। पहले इस्म में एक ही पेश आएगा, या अगर ज़ेर आनी हो तो एक ही ज़ेर आएगी, ज़बर आनी होगी तो एक ही ज़बर आएगी, ठीक है।
اور اس پہ الف لام نہیں ہوگا، اس پہ الف لام مضاف الیہ پہ الف لام آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا، لیکن مضاف پہ الف لام ہم کہیں گے حکم المضاف انہ لا يقبل الف لام ولا يقبل التنوین. مضاف جو ہوتا ہے یہ نہ ہی الف لام قبول کرتا ہے نہ ہی تنوین. تنوین کس کو بولتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. حکم المضاف لا يقبل الف لام ولا يقبل التنوین، نہ ہی یہ الف لام کو قبول کرتا ہے، یعنی مضاف ہمیشہ الف لام کے بغیر ہونا چاہیے، الف لام کے بغیر ہونا چاہیے، الف لام کے، اور اس پہ تنوین نہیں آنی چاہیے، اس پہ تنوین نہیں آنی. اور جو مضاف الیہ ہے، المضاف الیہ یکون مجرورا دائما 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 ابدا ابدا. کیا ہوتا ہے؟ مجرور. مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. اور الف لام کا معاملہ کیا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے. اور تنوین ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. ہو سکتی ہے کب؟ جب یہ الف لام کے بغیر، جب یہ الف لام کے بغیر. اور اگر الف لام ہو تو اس وقت تنوین نہیں ہوگی. اور تنوین بھی کون سی ہوگی؟ تنوین مکسور. تنوین مکسور. تنوین مفتوح یا تک تنوین مضموم نہیں آئے گی. کلیئر؟ اب آپ کتاب کی طرف دیکھیں، جلدی جلدی سے کتاب کا جو لیسن ہے نا اس میں آپ مضاف اور مضاف الیہ ڈھونڈ کے نکالیں. جلدی 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 ایک طائرانہ نظر مارے اس میں اور دیکھیں، طائرانہ نظر مارے جلدی جلدی. مضاف کون سا ہے، مضاف الیہ کون سا ہے؟ یہ آپ کی کتاب پہ ہے الدرس الخامس، پیج نمبر ہے 27. الدرس الخامس پیج نمبر 27. آپ جلدی سے دیکھیے اس میں مضاف الیہ ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو مضاف کون سا ہے اور مضاف الیہ کون سا ہے؟ دیکھا؟ جلدی 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 پورا دیکھیں، پورا لیسن. اس پورے لیسن میں دیکھیں مضاف الیہ کہاں پہ ہے. پینسل ہے تو مضاف کے نیچے ایک لکیر کھینچیں، مضاف الیہ کے نیچے دو لکیریں کھینچیں، اور دیکھیں کس اعتبار سے یہ ترکیب آئی ہے. الف لام کہاں پہ آیا ہے کہاں پہ نہیں آیا ہے. اور اگر اعراب حرکات ڈالے ہوئے ہیں تو آپ حرکات بھی دیکھیں، کیا مضاف الیہ پہ مجرور کی علامتیں ڈلی ہوئی ہیں کہ نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے. الف لام ہے تو کیا ایک ہی زیر ہے کہ نہیں ہے، الف لام کے بغیر ہے تو کیا دو زیر ہے کہ نہیں ہے. ڈن؟ ماشاء اللہ، سو کوئک. نعم. دیکھیں، ہاں میں پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں کتاب. ہاں. الدرس الخامس سعید اکتاب محمد اکتاب محمد هذا یا یاسر یاسر لا هذا کتاب حامد هذا کتاب حامد. سعید أين كتاب محمد أين كتاب محمد؟ هو على المكتب هناك، هو على المكتب هناك. طيب أين دفتر عمار؟ أين، ما معنى دفتر؟ نوت بوك. نوت بوك. أين دفتر عمار؟ ياسر هو على مكتب المدرس، هو على مكتب المدرس. طيب قلم من هذا يا علي؟ يا علي قلم من هذا؟ هذا قلم المدرس، هذا قلم المدرس. أين حقيبة المدرس؟ أين حقيبة المدرس؟ هي تحت المكتب، هي تحت المكتب. خلاص، یہ ہے ہمارا لیسن، یہ ہے ہمارے لیسن کا ٹیکسٹ. نص کیا بولتے ہیں اس کو؟ نص. نعم. طيب تو نص کس کو بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں نص. ہاں اس کو بھی بولتے ہیں نص، لیکن کشمیری میں.
عربی میں نص کس کو بولتے ہیں؟ ٹیکسٹ، چاہے وہ کوئی بھی ٹیکسٹ ہو، قرآن کا ٹیکسٹ ہو، حدیث کا ٹیکسٹ ہو، اس کتاب کا ٹیکسٹ ہو، یا کوئی اور بھی کتاب ہو جو اس میں ٹیکسٹ دیا ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں نص. کیا بولتے ہیں؟ نص. طیب. کتاب محمد، اس میں مضاف مضاف الیہ کہاں ہے؟ کتاب محمد. تو ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ محمد کی کتاب. کا مطلب کیا، حاذا کا مطلب یہ. کتاب محمد حاذا یا یاسر، کیا یہ محمد کی کتاب ہے یا یاسر؟ اے یاسر، او یاسر، is this Muhammad's book? Is this Muhammad's book؟ کیا یہ محمد کی کتاب؟ لا، نہیں. حاذا کتاب حامد، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ حامد کی کتاب ہے. تو اس میں مضاف مضاف الیہ کون سا ہے؟ کتاب حامد. مضاف کون سا ہے؟ کتاب. مضاف الیہ. اب مضاف پہ فوکس کرو. مضاف پہ الف لام ہے؟ نہیں ہے. تنوین ہے؟ نہیں. یہی پڑھا نا ہم نے مضاف کے بارے میں کہ اس پہ نہ ہی الف لام آتا ہے نہ ہی تنوین آتی. اب مضاف الیہ پہ فوکس کرو. مضاف الیہ پہ کون سا اعراب ہے؟ مجرور کا اعراب ہے نا، مجرور کا اعراب. ٹھیک ہے، مرفوع نہیں ہے، منصوب نہیں، بلکہ کیا ہے؟ مجرور. نعم. الف لام نہیں ہے اس لیے کیا ہے؟ دو زیر. اگر الف لام ہوتا تو ٹھیک ہے، اگر الف لام والا مضاف الیہ ہوتا تو ایک ہی زیر. لیکن یہ والا جو مضاف الیہ آیا ہے یہ الف لام والا نہیں ہے، اس لیے کتنی زیر آئی ہیں؟ دو. اوکے. این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ اب آپ نے کہنا ہے کہ محمد کا قلم کہاں ہے، تو کیا بولیں گے؟ این قلم محمد. اب آپ نے کہنا ہے کہ محمد کا گھر کہاں ہے؟ این بیت محمد. آپ نے بولنا ہے کہ محمد کا بیگ کہاں ہے؟ این حقیبۃ محمد. اب آپ نے کہنا ہے یاسر کی کتاب کہاں ہے؟ این کتاب یاسر. ٹھیک ہے. یاسر کی کرسی کہاں ہے؟ این کرسی یاسر. حامد کی کتاب کہاں ہے؟ حامد کا گھر کہاں ہے؟ حامد کا قلم کہاں ہے؟ ہے نا ایزی، بہت آسان ہے نا. یہ اتنا ہی ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے. آئینہ. اچھا. ہوا علی المکتب ہناک، وہ وہاں ٹیبل پہ ہے. وہ وہاں، بتاؤ کہاں پہ ہے؟ مضاف مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ کہاں پہ ہے؟ پھر یہ بھی دیکھو مضاف کون سا ہے، مضاف الیہ کون سا ہے، تاکہ آپ پریشان نہ ہو جائیں. اس پہ دیکھو اعراب، دیکھو جو ہم نے اعراب پڑھا ہے، جو ترکیب ہم نے پڑھی ہے، اس پہ فٹ آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا ہے؟ منڈی کیوں لا رہا ہے یار؟ لا بھی بولو، لا. شاباش. صرف منڈی ہلانے سے کام نہیں چلے گا. لا لا. احسنت. نعم. مضاف مضاف الیہ میں یوجد او غیر موجود؟ غیر موجود. لا يوجد في هذه العبارة أو في هذه الجملة تركيب يسمى مضاف ومضاف إليه، غير موجود في هذا الشيء، غیر موجود. اب یہاں پہ جو انہوں نے استعمال کیا ہے ہنا کا مینز دیر، وہاں. ہنا مینز ہے. آپ نے اسماء الاشارہ پڑھے ہیں؟ اسماء الاشارہ پڑھے ہیں؟ کیا کیا پڑھا ہے؟ ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی. یہ قریب کے لیے. بعید کے لیے کیا پڑھا ہے؟ ذالکا، ذانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا. اب میری طرف سے دو اور ایڈ کرو. کتنے؟ دو. ایک ہے ہنا، دوسرا ہے ہناک. ہنا اسم الاشارہ للقریب،
اور हुनाका इस्मुल इशारा लिलबईद ओके, इसको बोलते हैं इस्मुल इशारा लिल मकान। क्या बोलते हैं? इस्मुल इशारा लिल करीब हुना व इस्मुल इशारा लिल मकान लिल बईद हुनाका। तय्यब, कलमु अयन दफ्तर अम्मार, दफ्तर मुजाफ, अम्मार मुजाफ इलैह, हुआ अलल मक्तबी अला मक्तबिल मुदर्रिस, मक्तबुल मुदर्रिस था ये, क्या था ये? मक्तब मुजाफ था, अल मुदर्रिसी मुजाफ इलैह था, है ना। लेकिन मक्तब से पहले क्या आया? आला, और आला आपने इससे पहले वाले लेसन में पढ़ा कि हुरुफुल जर में से है और मुजाफ पे ये अपना काम करेगा, इसने बोला बनाया इसको क्या? आला मक्तबिल मुदर्रिस, अल मुदर्रिसी मुजाफ इलैह मजरूर, मक्तब मुजाफ और उसके बावजूद भी ये क्या है? मजरूर। क्यों? क्योंकि इससे पहले हर्फ जर आया। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मुजाफ क्या बनेगा? मजरूर, मंसूब भी बन सकता है और मरफू आम हालतों में होगा। तय्यब, कलम मन हादा या अली, ये किसका कलम है अली? यहाँ पे मन जो है ना ये मुजाफ इलैह है, लेकिन मन जो है ये मबनियात में से है, ये मबनियात में से है। अल अस्मा उल इशा अस्मा अल अदवात अल अदवातुल इस्तिफहाम कुल्लुहा मबनिया, अदवातुल इस्तिफहाम जो क्वेश्चन टूल्स हैं वो सब के सब क्या है? मबनी, इल्ला सिर्फ एक नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है? आयु। बहुत अच्छा, आयु कभी आय्या भी आ सकता है, आय्यी भी आ सकता है। बाकी जो अदवातुल इस्तिफहाम है आ, हल, कैफा, मन, मा, है ना, आईना, कैफा, ये सब के सब क्या है? मबनी, ये चेंज नहीं होते। लेकिन आयु सिर्फ एक ऐसा अदात इस्तिफहाम है जो चेंज होता है। हाजा कलमुल मुदर्रिसी, कलमुल मुदर्रिसी तरकीबुन इज़ाफ़ियुन, कलम मुज़ाफ़ वल मुदर्रिसी मुज़ाफ़ इलैह। ऐन हक़ीबतुल मुदर्रिस, हक़ीबा मुज़ाफ़, अल मुदर्रिसी मुज़ाफ़ इलैह। हिया तहतल मक्तबी, वो टेबल के नीचे है। अब इसमें हमने ये भी पढ़ना था कि अगर टेबल के ऊपर होगा तो हम आला बोलते हैं, नीचे होगा तो तहत होगा। जैसे अल कलमु अलल मक्तबी, अल कलमु तहतल मक्तबी। इसी तरह अलल कुर्सी, ये तहतल कुर्सी, ये ठीक है। वाजिब मंजिली आप लोगों के लिए। फौका और आला में क्या फ़र्क है? फौका और आला में क्या फ़र्क है? ठीक है, फौका और आला में क्या? हम कह सकते हैं ना अल कलमु फौकल मक्तबी, हम कह सकते हैं अल कलमु अलल मक्तबी। दोनों में क्या फ़र्क है ये आप अगले हफ्ते आप लाएंगे, ठीक है, ताकि बाकी लोग भी प्रैक्टिस करके लाएंगे, देख के लाएंगे, ठीक है। तमारीनु एक्सरसाइजेज जो इसमें हैं, अजिब अनिल अस्इला आती है, सवालों के जवाब। आईना किताब मोहम्मद, जवाब लेसन में दिया हुआ है, उसे एतबार से बताएं जी। किताब मोहम्मदिन, ज़रा देखें इधर, हुआ अलल मक्तबी हुनाक। आईना किताब अम्मार, आईना किताब अम्मार, यहाँ से गैर मकतूब होना लिखा है कहीं पे? नहीं लिखा है ना। अम्मार की किताब लिखा है कहाँ पे? नहीं, वो तो दफ्तर है, वो दफ्तर है। सवाल है आईना किताब अम्मारिन, आईना किताब अम्मारिन, तो यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आप अपने एतबार से लिखें। हुआ अलल मकतब, हुआ अला मकतबिल मुदर्रिसी। तय्यब, आईना हक़ीबतुल मुदर्रिसी, हिया तहतल मक्तब। अब यहाँ पे हुआ मुज़क्कर के लिए और हिया मुअन्नस के लिए। अज़िफ़ अल कलिमा अल ऊला इला सानिया, पहले वर्ड को दूसरे वर्ड की तरफ मुज़ाफ बनाएं, ठीक है। किताबुन मुहम्मदुन, तो क्या बने गए? किताबु मुहम्मदिन। आप देखेंगे यहाँ पे हामिद, अब्बास, अली, सईद, यासिर, अम्मार, खालिद, ये सब के सब आलाम हैं, नाम है, तो इन पे जो है अलम है, इन पे अलिफ लाम नहीं होगा दाखिल, तो इनके लास्ट में क्या आएंगी? दो ज़ेरे आएंगे, है ना, तनवीन आएगी। कलमु हामिदिन, बैतु अब्बासिन, गुरफतु अलीन, मिंदीलु यासिरिन, कमीसु अम्मारिन, सरीरु खालिदिन। अब इसके बाद देखें दूसरा वाला,
मकतबुल लिखा है, अल मुदर्रिसु लिखा है, तो क्या बनेगा? मकतबुल मुदर्रिसी, मकतबुल अलिफ लाम है ना, तो एक ही जेर। मिफ्ताहुल बैती दुक्कानुत ताजिरी, बैतुल मुहंदिसी इस्मुल वलद, किताबुल बिन्तुत तबीबी, मिफ्ताहुस इक़रा वक्तुब मअ ज़ब्ति अवाखिरिल कलिमात, बाबुल मदरसती हिमारुर रजुली, बैतु हामिदिन सय्यारतुल मुदीरी, मिंदीलु अम्मारिन इस्मुत तालिबी, बैतुल्लाहि फी किताबिल्लाहि, मिन बैतिल, मिन है ना हर्फ जर, मिन बैतिल मुदर्रिसी अला मकतबिल मुदीरी। इक़रा आइना बैतुल मुदर्रिसी हुआ अल कुरानु किताबुल्लाहि, अल कअबतु मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आमतौर पर कहते हैं मोहम्मद ससम 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 बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? ये आराम से बोलना, अच्छे से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अल्लाह ताला उस पे दरूद भेजे, सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह ताला उस पे दरूद भेजे, वसल्लमा और उस पे सलामती भेजे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ससम नहीं बोलना, ससम नहीं बोलना, ठीक है, इसको सही करने की जरूरत है। रसूलुल्लाहि रसूलुल्लाहि, खरजल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल मुदीरी, हाज़ा बैतु हामिदिन वज़ालिका खालिदिन, इब्नु अम्मारिन तालिबुन वब्नु यासिरिन ताजिरुन, वब्नु यासिरिन, इसी तरह करके बैतुल मुदर्रिसी बईदुन व बैतुत ताजिरी करीबुन व तुकमिलून अल बक़िया बिअनफुसिकुम इंशाअल्लाहु तआला व तज़ऊन खत्तन वाहिदन तहतल मुज़ाफ व खत्तैन तहतल मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ के नीचे एक लकीर खींचे और मुज़ाफ इलैह के नीचे दो लकीर खींचे। मैं ये किताबें चेक कर लूँगा, ठीक है। बारकल्लाहु ताला फीकुम। इसके बाद देखें, कौविन जुमलन मुफीदतन बिमलइल फराग फीमा यली, खाली जगह को पूर करें और मुफीद जुमले बनाएं। अल बैती मुगलकुन, क्या लगेगा यहाँ पे? बाबुल बैती मुगलकुन। आइना मिफ्ताहु सय्यारति, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाहि, अल फराग तबीबी बईदुन बैतु तबीबी, अल कुरानु खदीजतु बिन्तु हामिदिन, अना इब्नुल मुदर्रिसी, अत्तालिबी मकसूरुन, क़लमुत तालिबी मकसूरुन, बाबुल बैती खरजल मुदर्रिसु मिन मकतबिल मुदीर, सही तराकीब अतालिया, ये जो तराकीब यहाँ पे लिखी हुई इनको सही करना, ये लोग आप खुद करेंगे, ठीक है। जैसे अल क़लमु अत्तालिब इसने लिखा है तो हम अलिफ लाम हटा देंगे मुज़ाफ से, तो ये बनेगा क़लमु अत्तालिबी, ठीक है। इसी तरह मुहम्मदुन है, अगर हमने इसको पुकारना है तो हम क्या बोलेंगे? या मुहम्मदु, एक ही पेश। यासिरुन है, क्या कहेंगे? या यासिरु, हामिद या हामिदु, ठीक है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये भी आप खुद करेंगे। अब लास्ट में है इस्मुन और इब्नुन। ये जो इस्मुन और इब्नुन है ना,
ان میں جو سٹارٹنگ میں حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل اگر سٹارٹنگ میں آتا ہے تو پڑھتے ہیں, بیچ میں آئے تو نہیں پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اسم الولد, ہم نے پڑھا یہاں پہ پڑھا نا حمزہ, تو ہم بولتے ہیں اسم الولد, لیکن جب بیچ میں آتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں واسم البنت, پھر ہم یہ نہیں پڑھیں گے واسم البنت. اسی لیے جب ہم کوشچن پوچھتے ہیں نا واٹ از یور نیم, ہم کیا بولتے ہیں مسموکا. ہم یہ نہیں بولتے ما اسموکا, نہیں, ہم کیا بولتے ہیں سیدھے مسموکا, کیونکہ اسم میں جو سٹارٹنگ میں حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے, نقلی ہے, وہ صرف لکھا جاتا ہے, پڑھا نہیں جاتا. اسی طرح ابن کا بھی معاملہ ہے, سٹارٹنگ میں آئے ہم کہیں گے ابن حامد طبیب, بیچ میں آئے تو ہم حمزہ کو نہیں, ہم کہیں گے وابن محمد مہندس مثال. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فی امان اللہ تعالی.